हमारे साथ है आज मिस श्वेता। तो उनसे जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले श्वेता, आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो स्टूडेंट्स को, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, okay. Thank you so much, sir, for having me here. So I'll start with my brief introduction first. I firstly pursued my BTech in chemical engineering from Banasli University. Then, as like everyone, I took GATE coaching from Ankur sir only. So after that, I got admission into IIT Delhi for my masters. Post that, 2 years I was there. Post that, I went to RFCL, Ramagundam Fertilizers and Chemical Limited, which comes under National Fertilizers Limited, which recently upgraded to Navratna. So after that, I was there for 4 years. I was posted in Hyderabad, Telangana. So I had a very wholesome experience because it was like commissioning, and I was not attached to one particular department. Rather, I moved here and there. So I learned quite a lot, to be honest. I learned a lot. It was not a routine job per se, as we all think about PSUs. So it was a very learning extensive job. But again, I had my great time there. But after that, I felt that I need to apply those learning somewhere else, because eventually the PSU monotonous thinking was kicking in. So I started looking for option. Back then we did not have any option like Ankur sir is doing right now. So I had to talk a lot of people. It took 1 year of at least convincing myself that I want to move ahead from this job and I don't want to stay there. So I started looking for option. Then I came across CAT as one of the viable option that I could do. So yeah, I talked to a lot of people how the loan process works out, how how much percentile I need to get into top B schools, and then like the basic stuff like कि कितने तक होने पे मतलब I will be in a better off situation. बिल्कुल। So then I started my cat prep, and then it went on for 6-7 months, and then the interview started. I got call from good IIMs, and then finally I got into IIM Cal. So 2 years I was there, and I recently graduated from IIM Calcutta from their main flagship MBA program. And so I joined Accenture Strategy and Consulting as a consultant here. And yeah, that's all about me. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग जर्नी। एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने इस जर्नी में गेन किए, जो जिसने आपको भी डेफिनेटली एक बहुत बेटर पर्सन बनाया होगा। और आज इस सेशन से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इन पूरी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे आपने अभी बीच में बात करी कि आरएफसीएल के अंदर आपकी पोस्टिंग हुई थी, और 4 साल आपने वहाँ पे रिगरस और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करी, काम किया, और चीज़ें काफ़ी सीखने को मिली, है ना? तो अभी आरएफसीएल की वैकेंसीज भी एक्चुअली निकली हुई है। तो मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा ब्रीफ में कि आरएफसीएल एज़ ए कंपनी क्या है? व्हाट इज़ आरएफसीएल, अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या कंपनी है, क्या काम करती है, और एक केमिकल इंजीनियर का आरएफसीएल में रोल क्या होता है? तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए। Okay. So I'll start with my experience with या। RHCL. So basically, when I joined, it was still somewhat in the documentation commissioning stage. So wo progress kar raha tha. I joined in 2018. Uh, when I entered into RFCL, so I was appointed as a production engineer. But production तो eventually मतलब तब तक start हुआ नहीं था मेरे time सही पे. बात है। तो मैं क्या था, EIL हमारा promoters है, NFL हमारा promoter है. तो I was on deputation. I was again sent back to EIL. तो दैट वाज अ वेरी लर्निंग गुड थिंग दैट मेरे को EIL के साथ भी काम करने को सही मिल बात रहा है. है। गॉट टू नो देयर वर्क एथिक्स, हाउ देयर हाउ द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एवरीथिंग हुँ। takes place in EIL basically. So that was very good opportunity that I got there. So afterward I stayed there for around 1.5 year. So there were very few people, I guess one and other person also. So one other person got that opportunity to basically work with EIL, and then we stayed for some time, and it was very learning extensive, to be honest. मतलब ऐसा केमिकल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बोला जाता है कि आप 10 साल का एक नॉर्मल प्लांट का रूटीन एक्सपीरियंस ले लो, और आप 2 साल का कमीशनिंग, 2 या इवन 1 साल का बिल्कुल, भी कमीशनिंग एक्सपीरियंस ले लो. दैट बिल्कुल। इज एक्चुअली इक्विवेलेंट, बिकॉज what happens in a commissioning plant is you actually see things building up. Like बचपन में हम लेगो सेट से बनाते हैं ना, छोटा 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 करके, हुँ। then we make a bridge. So you actually see the nuts and bolts of a plant, कि ये लाइन यहाँ पे गई है, ये ऐसे गई है, तो ये वाली भी जो लाइन यहाँ पे गई है, ये एक्चुअली ऐसे प्लांट थी, बट ये प्रॉब्लम आई थी, तो ये ऐसे करके गई है करके. एग्ज़ैक्टली। सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग, योर थ्योरेटिकल नॉलेज, जो मुझे एक्चुअली वो चीज का था कि यार इतना सब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिया, बट इसे अप्लाई कैसे करें, तो वो हुँ। वहां पे एक्चुअली अप्लाई होता है, नॉट इन रूटीन प्लान. रूटीन प्लान में तो बस वो बता देते हैं कि चलो DCS ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे करना है. इट्स लाइक अ गेमिंग सेटअप, टू बी सही बात ऑनेस्ट. है, सही सो बात है।
उस टाइम पे वहां पे चल रहा था कि मतलब आपको लेजिट ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ रहा है कि जूनियर्स वो सीनियर्स आप पे छोड़ दे रहे हैं कि कम अप विद अ सोल्यूशन, देन यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म कि अच्छा ये ऐसे हुआ, अब इसके अच्छा ये लिमिटेशंस है, अब हमें इस लिमिटेशन के अंडर काम करना है, तो अब हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा अच्छा था मेरा, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब स्टार्टिंग के 2-3 साल तो ऐसे कि जितना सीख लो उतना कम है। आई मतलब ऐसे बोला जाता था कि आप प्लांट में कहीं भी खड़े हो जाओ, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। So that was actually quite true there. So after that, I moved into production. I stayed in production for pre-commissioning and all. Then फिर ऐसे क्या था कि I somehow built a rapport in my company कि ठीक है, I am bit hardworking and all, and I like to work. कि not like कि अगर दे दिया तो अगर वो थोड़ा डिले हो जाएगा, it's like my work ethics were very good. तो they started, they were thinking of setting up a technical services department. So they named me के like इसको लेते हैं, ये Okay. अच्छा काम करती है तो करके। तो that's how I started and I actually built a entire department. Like 3 ही लोग थे and 3 लोगों में वो पूरा plant coordination देखना और ये सब। Then I was also responsible for environmental cell. Then I was licensing with state and central government कि Okay. कैसे वो क्या क्या रिपरकशंस होते हैं while operating a plant, हम कैसे गवर्नमेंट की बाउंड्रीज की पर्व्यू में आते हैं, हाउ टू हैंडल दैट एज वेल। तो वो सारी चीज देखने तो इट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सटेंसिव, मतलब आई डू नॉट Seriously. थिंक के कभी मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल पाता जो कि उस प्लांट में मिला अपॉर्चुनिटीज वाइज। और इफ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स एंड ऑल, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में अगर आप काम कर रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी देयर। लाइक ठीक है, मतलब मैं काम कर रही थी बिकॉज आई वांटेड टू वर्क, बट देयर वर सही बात पीपल है। हु वाज नॉट गिविंग देयर 100%, बट दैट इज 100%. आल्सो फाइन बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, राइट। Exactly. कि Exactly. उसके बाद क्या था कि आपके मेडिकल बेनिफिट्स अच्छे हैं, आपको वहां पे अपार्टमेंट वगैरह मिलेगा, तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीज है बेसिकली वो सब के बारे में आपको इतना सोचना नहीं है। प्लांट से जो आपका टाउनशिप है वो 1 किलोमीटर दूर है, तो जाना है बस। अगर बीच में कुछ फैमिली इमरजेंसी भी आ गई तो यू कैन रश बैक टू द प्लांट टाउनशिप अगेन। तो वो सारा था कि अंडरस्टैंडिंग लोग थे थोड़ा, मतलब आप उन्हीं लोगों के साथ काम करो बेसिकली, उन लोगों से दे रहे, तो दे वर लाइक लीनियंट, दे वर नॉट दैट स्ट्रिक्ट कि नहीं प्लांट के टाइम पे बाहर नहीं जाना। अगर ठीक है किसी को कुछ अर्जेंसी है, कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, यू कैन इजीली go and have it, but that was again limited to that particular PSU. I cannot say it will be बिल्कुल. applicable to other PSUs as well. So this is my experience basically with RFCL. So again मतलब हाँ लर्निंग वाला काफी था, प्लस प्लांट्स में जो भी होता है ना कि जब हमारा लर्निंग फेज कब होता है, अगर प्लांट कोई भी रूटीन चलता रहेगा तो आपका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, 2-4 आपने पूरा ऑटोमेटेड है, 2-4 आपके पैरामीटर्स है, ऊपर नीचे होगा, थोड़ा बहुत कुछ करोगे, 8 घंटे की शिफ्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता है। सही बात है. बट एक एनुअल टर्न डाउन जब काम करता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है प्लांट में, तो हमको एक्चुअली पता चलता है कि कैसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं, दैट इज एक्चुअली द लर्निंग फेज। सो Exactly. उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लांट में बहुत प्रॉब्लम आई अच्छा. उसको बहुत टाइम लगा सेटअप करने के लिए, बट अगेन इट वाज लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर ऑल द वर्कर्स बिकॉज वी वर लर्निंग क्वाइट अ लॉट कि अच्छा मतलब उधर ऐसा था कि एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग हैज गॉन रॉन्ग देयर। तो तो इसलिए इट बिकम क्वाइट अ लर्निंग एक्सटेंसिव फॉर ऑल ऑफ अस इवेंचुअली। ग्रेट, ग्रेट. तो एक सिक्योर लाइफ, एक ठीक ठाक जिंदगी, लाइक एक मिडिल क्लास जिंदगी जिसमें खर्चा बढ़िया चलता रहे, ज्यादा कोई टेंशन ना हो, पैसा आता रहे, फैमिली भी खुश रहे, सोसाइटी में इज्जत भी रहे, स्टेटस बना रहे, तो उन लोगों के लिए मतलब PSU इज ए गुड ऑप्शन. It's a very good option to be honest. Like my family was really pissed when I told them कि I'm trying to go to private sector now. So they were very pissed. Even after MBA, my mom was like कि अभी government job मिल सकती है क्या? I was like no, strict no, I don't want to go there. But yeah, the perks was really good. Like my mom, my sister during COVID also कि मेरी family ऐसा हुआ कि COVID से just पहले they came there and they were living, तो बाकी जगह क्या था बाहर नहीं निकल सकते, बट वी हैड दिस टाउनशिप, दे कुड इजीली वॉक, दे कुड इजीली मेरा एक पूरा ऐसे गार्डन था, तो इट वाज अ वेरी गुड लाइफस्टाइल टू बी ऑनेस्ट कि मतलब अगर मैं वो बोलूँ ना कि अगर मेरे को इतना ज्यादा बाहर का कुछ नहीं है कि मतलब आई कम फ्रॉम दिल्ली सो हैड दिस थिंग कि मेरे को वापस जाना है दिल्ली में, बट अदर देन दैट वाज अ वेरी गुड प्लेस कि अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहना, यू हैव अ होल टाउनशिप। हमारी एकदम न्यूली सेटअप टाउनशिप थी, तो इट वाज वेरी न्यू कि मतलब आई वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ माय फ्लैट, तो
everything was fresh. I had a whole garden. I had time to give to my family basically. ठीक है, I can come. जैसे ही अगर एक बार प्लांट से आ गए ना, तो it's not like प्राइवेट जॉब कि आपको कुछ सही काम बात करना है, है, आप सही बात आ गए बस। है। अब जैसा कोई नहीं हो सकता। अब आप आ गए हो, अब आप बैठ जाओ आराम से, अनलेस एंटिल देयर इज एन इमरजेंसी व्हिच कम्स सही लाइक बात वंस इन अ ब्लू मून। तो तब तक आप आ गए हो, आप आराम से चिल करो, अब आप अपनी फैमिली को टाइम दो। नो ओपनिंग ऑफ द लैपटॉप, वी डोंट इवन नीड द लैपटॉप देयर, क्योंकि वो जो भी होगा वहां के सिस्टम्स में होगा, घर आके कुछ उनका रिमोट वर्किंग का काम नहीं है। सो सही बात दैट वाज द सीन। सो अगर आपको वही फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ, एक मतलब जो एक्चुअली एक वो होता है ना कि सिंपल लिविंग वाला, तो दैट इज सुकून अ वाली वेरी, बात। हाँ, दैट इज वेरी गुड जॉब। ग्रेट ग्रेट। सो गैस, ये पीएसयू का एक्सपीरियंस था, और जैसे श्वेता ने बताया कि पीएसयू में जाना मतलब एक काफ़ी सेटिस्फाइंग काम होता है। मतलब अगर आपके माइंड में ऐसा नहीं है कि यार सारी उम्र मुझे लर्निंग करनी है, सारी उम्र मुझे ग्रोथ करनी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं है, और एक ठीक ठाक लाइफ आप जीना चाहते हो एज ए केमिकल इंजीनियर, तो पीएसयू इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज पर्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे उन्होंने बताया, टाउनशिप का एक बहुत एडवांटेज है, और ऐसी टाउनशिप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि करोड़ों के फ्लैट लेने पे भी सोसाइटीज में नहीं मिलती है जो टाउनशिप आपको वहां मिलती है, जो क्लीनलीनेस, जो सिक्योरिटी, जो फैसिलिटीज आपको वहां प्रोवाइड होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, लाइक कन्वेंस अलाउंस आपको मिलता है। इसके अलावा आपको अगर लैपटॉप लेना है, फर्नीचर लेना है, इवन स्पेक्टिकल्स लेने हैं, इन सब चीज़ों का आपको अलाउंस मिलता है। गाड़ी के लिए लोन मिलता है, आपको बाहर प्रॉपर्टी लेनी है उसके लिए आपको लोन मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सैलरी तो आपको ठीक ठाक मिल ही रही है, जिसमें हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज ग्रोथ गवर्नमेंट देती है। तो एक अच्छी लाइफ आप एक पीएसयू के अंदर बिता सकते हो, एंड इट्स वर्थ इट। अगर आप वहां पे जाना चाहते हो, इट्स वर्थ इट। तो श्वेता, मुझे एक बात बताओ कि आरएफसीएल में आप गए और 4 साल वहां पे आपने काम किया, बट फाइनली यू रियलाइज्ड कि यार मे बी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू अर्न, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ इन ए डिफरेंट वे। और अभी आप एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने एंट्री करी है, तो एक बहुत डिस्कशन उठता है बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट या प्राइवेट वर्सेस पीएसयू, है ना। हालांकि अब सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, किसी को गवर्नमेंट अच्छी लगती है, किसी को प्राइवेट अच्छी लगती है ना। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और आपने फाइनली ये जो लाइफ है गवर्नमेंट की सुकून वाली सेटिस्फाइंग लाइफ से स्विच करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने एंट्री करी है, तो क्या वो मेन ड्राइविंग फोर्स थी, या क्या वो रीजंस रहे होंगे, है ना, जो कि आगे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि अगर ऐसा माइंडसेट है तो यहाँ जाना चाहिए, ऐसा माइंडसेट है तो वहां जाना चाहिए। ओके, सो फर्स्टली एक डिस्क्लेमर है बस कि ये जो भी व्यूज हैं, दिस आर माय पर्सनल बिल्कुल व्यूज। पर्सनल आई व्यूज, डू बिल्कुल। नॉट हैव एनी हेट्रेड टुवर्ड प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एग्जैक्टली, सेक्टर, और दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन इन एनी वे। दिस बिल्कुल इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस आर माय प्रॉब्लम्स, और मे बी कि मेरा वो पीएसयू ऐसा था, लोकेशन ऐसा था, मतलब मल्टीपल फैक्टर का सही accumulation बात है, basically. सही बात है, Okay, सही बात so do not drive your decision based on that, make your own calls basically. So firstly I'll start ki when I realized I need to change. So that was around the covid was very changing for everyone. I was in essential services. My family was there in Delhi. I could not go home for around 6-10 months. I was working like twice as hard to live in Telangana. Basically, I was posted in back in Telangana. So that was a very difficult time for me. I felt like I cannot live this far away from my family, to be honest. है। So that was the first call. Ki, I thought ki maybe I need to change something. Dusra, I realized like eventually, matlab like on even on personal side also, ki you think about getting married and all. So there the options were very limited because nobody would leave their job and come to my place, right? To live in a सही tier 3 सही बात, city. So that was सही one of the बात, major driving factor. Like my parents were getting concerned. They are asking me to leave my job. Would I be willing? So I said, no, I won't leave a job for a guy basically. सही But बात है। like, no, I would not expect anyone to come for me either. So that was one of the other factor that I had. And it's not like there were people who basically adjust, like getting married inside their batches only, or maybe senior हाँ, junior types. So that is perfectly okay if you're okay, but I could not find anyone who was enough compatible with me there. So ठीक that was बात, another factor. So also I felt like I have reached that point where I was not learning anything new. It was like everyone was learning something from me, like the be it on personal or professional level, but I was not learning anything new. I was like giving and giving. I was not
making progress within myself, and I was sort of moving into a depression because of that, because I always thought कि मैं प्रोग्रेस करूंगी लाइफ में. I've always been very ambitious throughout my life, मतलब as you have seen my career बिल्कुल trajectory also. बिल्कुल तो वो एक ambitiousness था, and I felt कि अब मैं क्या कर रही हूँ, I am not meant for this job. That thought was started kicking in basically. So I started looking for different options, like what are the options available to me. So पहले तो वो था कि गवर्नमेंट जॉब में पहले सोचा चलो एसएससी कर लेते, लाइक द बेसिक थॉट व्हिच कम्स इनटू आवर माइंड कि एसएससी कर लेते, यूपीएससी कर लेते. बट आई वाज लाइक अगेन दिस कुड बी अ प्रॉब्लम देयर आल्सो कि अगर मिल गया तो अगेन आई विल बी स्टक देयर फॉर अनदर 2-3 इयर्स, एंड फिर टू रिलाई समवन कि अब भाई कोई मेरी सोर्स लगा के मेरा ट्रांसफर कराएगा, दैट इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू. आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, सही राइट. बात है. तो वो एक फैक्टर था. तो आई डिसाइडेड देन एंड देयर कि आई वांटेड टू गो फॉर एमबीए. सो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर दिस ऑप्शंस. बेसिकली आई स्टार्टेड विद एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑप्शंस, बट देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड लाइक 5 इयर्स चाहिए. तो मैंने कहा अगर 1 साल मुझे और एक्स्ट्रा यहाँ पे काम करना है, उससे बेटर है कि मैं 2 साल वाला फ्लैगशिप कर लेती हूँ. दैट हैज मोर वैल्यू, मोर क्रेडिबिलिटी. सही बात So है. I started talking, but my main concern was how the loan would work out, because my parents were not onboarded. Seriously, they are still not onboarded. So they said no, and I was like, इनके परमिशन के बिना तो कैसे लोन अब सैंक्शन कराया जाए, क्योंकि होने वाला 40 लाख का लोन. मतलब that was the maximum limit. तो I was like ठीक है चलो. फिर मैंने पूछा, मतलब before starting my prep, I was concerned about getting a loan. So I talked to a lot of people, lot of friends कि उनको इतना परेशान कर दिया मैंने कॉल कर करके कि भाई पक्का से बताओ लोन मिलेगा ना, पेरेंट्स का कहीं सिग्नेचर नहीं लगेगा, कुछ नाम नहीं लगेगा, मैं नहीं चाहती. इनफैक्ट एक वो भी थॉट रहता है बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन कि अगर मुझे कुछ हो जाता है 40 लाख का लोन मेरे पेरेंट्स को देना पड़ जाएगा. सो इवन आई डोंट, मतलब मैं रिस्क ले रही हूँ तो आई वुड बी द वन सफरिंग, not my parents, not my family. I don't want that kind of liability to shift onto them. तो this is the thing. फिर मैंने पूछा बहुत लोगों से, तो दे assured me कि नहीं भाई नहीं लग रहा है. I can even give you the bank manager's number. You can talk to them, and that was the case. 0 collateral लोन मुझे पूरा फुल मैक्सिमम लिमिट पे मिला है. किसी भी आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाए आपको फुल लोन मिलेगा बिना कोलेटरल के. आई इवन गॉट माई लोन इंश्योर्ड कि अगर मुझे वैसे भी कोलेटरल नहीं है तो दे कैन नॉट गो टू माई पेरेंट्स. इवन देन आई गॉट माई लोन इंश्योर्ड फॉर अनदर लाइक 30-40,000 ओनली, कि अगर मुझे कुछ होता है तो गेट पेड इवेंचुअली. तो दैट वाज लोन पार्ट वाज सेटल्ड. देन आई स्टार्टेड माय प्रेप. तो इवेंचुअली मुझे पता चला कि एग्जीक्यूटिव से ज्यादा अच्छा तो अपना फ्लैगशिप वाला है. तो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर फ्लैगशिप, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव में बहुत कम ऑप्शंस है कॉलेज के. तो देन आई स्टार्टेड माय कैट प्रेप. आई वाज लाइक आई स्टार्टेड अराउंड आई थिंक जुलाई and CAT was November end. So I took medical leave जैसे भी करके office से. That was a big hassle there. So I came back my home and I started. So this is the thing which my mom actually told me a year later कि हमें लगा था 2-3 महीने का करके ये चले जाएगी वापस. And this she told me when I got my acceptance from IIM Calcutta कि हमें नहीं पता था तू वहां पे जाके चैन लेगी. हमें लगा था तेरा कोई क्रेज है, फिर से एक जोन है, तू जाएगी 2-3 महीने करेगी, तेरे को पता चलेगा नहीं हो रहा है तो तू वापस चली जाएगी. तो yeah, that was how the journey initiated basically. Then I worked for like 3-4 months and mocks constantly दिए, सब कुछ दिया अपनी साइड से. I gave my 100%, yet I was not expecting कि it was enough कि वो लास्ट टाइम तक नहीं लगता, बिकॉज हमारे दिमाग में भी थोड़ा सा इशू रहता है कि हमें लगता है कि हर कोई स्मार्ट है, वेयर आई विल फिट इन. मतलब आई एम नॉट दैट स्मार्ट. तो एक तो मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकली वी नीड टू फाइट दैट बैटल बिफोर वी स्टार्ट बिगिनिंग द बैटल इटसेल्फ. तो दैट वाज द थिंग. वो चीज एक करनी थी. तो उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग गॉट इजी के इवेंचुअली सब होता चला गया. कैट का रिजल्ट आया, अच्छी परसेंटाइल आई, फिर IIM कैलकाटा का कॉल आया, फिर बाकी सारे कॉलेज का था. आई वाज फोकस्ड ऑन IIM कैलकाटा और इधर FMS. सो दोनों क्लियर हो गया इवेंचुअली. एंड उससे पहले ही हाँ मतलब ये हुआ कि मैंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया. And nobody in my office knew कि I'll be going for MBA. So even my plant head rejected my resignation upfront. He told me कि अभी मैं नहीं ले सकता, ये आप सोचो दोबारा से. तो मैंने अगले दिन वापस से उसको दे दिया कि मैंने सोच लिया है मेरे को जाना है यहाँ से. तो the moment he even took it, he told me कि मैं इसको 3 महीने के लिए as it is रख रहा हूँ. I'm not going to process it. अगर आपको लास्ट डे भी लगे कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको रिटेन करना है, यू कैन जस्ट राइट एन एप्लीकेशन और मुझे बोल सकते हैं आई विल होल्ड इट. So he was that supportive, and everyone in PSC is actually that supportive. They want you to be, secured in every way. So I think that was the best memory I have of my entire
PSU करियर कि मेरे प्लांट हेड ने मुझे इतना मतलब एश्योरेंस दिया कि वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे को तब तक मैं भी उनको नहीं बोल सकती थी, तब तक मेरे पास कॉल लेटर भी नहीं था, मेरे को सही कहीं से बात है, एक्सेप्टेंस आया नहीं था, तो सही बात। मैंने भी उनको अपफ्रंट नहीं बोला कि मैं MBA करने जा रही हूँ। तो लेकिन ही वाज लाइक आई एम होल्डिंग दिस, आई वांट यू टू रीथिंक योर डिसीजन, अगर कभी भी आपको लगे 3 महीने में, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, आप मुझे आके बोलना, आई स्ट्रेट अवे टेक इट बैक, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी हम ले सकते हैं। सो दैट वाज माय एंटायर एक्सपीरियंस देयर। ग्रेट ग्रेट। और यहाँ पर मैं बच्चों को एक पॉइंट यहाँ पे मैं अपने अपनी जर्नी से ऐड करना चाहूँगा, प्राइवेट वर्सेस PSU के इस बात पे, कि ओवर दी 12 years ऑफ जर्नी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने प्राइवेट सेक्टर में जाते हुए देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को PSUs में गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हुए देखा है, और सबसे बातें मेरी होती रहती है, सबसे चिट चैट होती रहती है। सो व्हाट आई लर्नड इज कि अगर आपको लाइफ में मैं कहूँ कि एडवेंचर पसंद है, डेली बेसिस पे आप चाहते हो कि चैलेंज आपके सामने हो, उस चैलेंज को सॉल्यूशन आपको करना हो, है ना? डेली बेसिस पे लर्निंग आपको करनी हो, अपने आप को अपडेट करना हो कॉन्स्टेंटली, पिछले साल से इस साल बेटर बनना हो, है ना? और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली भी अच्छा बनना हो। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि 5-6 डिजिट सैलरी आपको चाहिए, आपको 7 डिजिट, 8 डिजिट तक जाना है, आपके सपने बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, है ना? आप भी लाइफ में चाहते हो कि यार मैं जाऊँ तो बिज़नेस क्लास ट्रैवल करूँ, मैं जाऊँ तो 5 स्टार में स्टे करूँ, मैं जाऊँ तो फिर ऑडी गाड़ी चलाऊँ, है ना? तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है, पैसे चाहिए, पक्ष चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो वो ग्रोथ जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में मिल पाती है आपको। और सबसे बड़ी बात प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलती है एक फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर कंपनी चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लोकेशन, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर पैकेज, क्योंकि जितना ज़्यादा स्किलफुल आप रहोगे और जितना ज़्यादा वैल्यूएबल रहोगे फॉर द कंपनी, तो कंपनी भी आपकी वैल्यू करेगी, है ना? अगर आप कंपनी के लिए एसेट हो, तो कंपनी भी आपको आसानी से जाने नहीं देगी और आपको वो सब कुछ देगी जो आप डिज़र्व करते हो। और ऑप्शंस हमेशा रहेंगे आपके पास कि लेट्स से अगर सही नहीं चल रहा है या जो आपके मन की है वो नहीं हो रही है, तो यू कैन ऑलवेज स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, और वो सबसे अच्छा एक ऑप्शन रहता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और जबकि PSU के अंदर अगर मैं बात करूं, तो PSU के अंदर नो डाउट अबाउट दिस की सिक्योरिटी एक हमेशा बनी रहती है। लाइक कोविड जैसी सिचुएशन में हमने देखा कि लाखों लोगों को नौकरी से निकाला गया, लाखों लोगों की सैलरी हाफ कर दी गई, बट PSUs के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो एक सिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है, एक स्टेबल लाइफ रहती है, और आपको कांस्टेंट, देखो लर्निंग तो हर जगह करनी पड़ती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होते हैं, जैसे जैसे ग्रेड चेंज होता है, आप डिप्यूटी मैनेजर बनते हो, जनरल मैनेजर बनते हो, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होते हैं, बट वो प्रेशर नहीं है कि आपको परफॉर्म करना है, वो प्रेशर नहीं है कि आपको एफिशिएंट बन के रहना है, वो प्रेशर नहीं है कि वीकली बेसिस पे या बाई वीकली बेसिस पे आपका एक परफॉर्मेंस ऑडिट हो रहा है, आपका भी मार्किंग की जा रही है, और उसके बेसिस पे आपको डी ग्रेड भी किया जा सकता है या वैसे भी रखा जा सकता है। तो टाइम बेस्ड चीजें ज्यादा ड्रिवन होती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, कि भाई अगर इतना टाइम हो गया तो फिर टाइम के साथ साथ चीजें मिलेगी मिलेगी। ऑब्वियसली जो बेटर काम करेगा उसका थोड़ा प्रमोशन जल्दी होगा, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, बट उतना ज्यादा हसल नहीं है इन द केस ऑफ PSU या इन द केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। चैलेंजेस आर देयर, बट वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। लर्निंग इज देयर, बट वो लर्निंग का स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को सेटिस्फाइंग लाइफ, सुकून वाली लाइफ, कि यार बाहर कुछ भी होता रहे, हमें तो अपना टाउनशिप में ही रहना है ना, तो वैसे अगर लाइफ जीनी हो तो PSU इज अगेन ए बेटर ऑप्शन, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली लाइक वन मोर ऑप्शन, जैसे श्वेता ने बताया भी, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर एक वो सेक्टर भी है जहाँ पे हम पावर के लिए भी काम करते हैं, लाइक SSC UPSC इन्होंने बात करी, तो UPSC के ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम एक सेशन लिया था। तो UPSC भी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। IFS एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो और DFO बन सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफी कुछ आपके हाथ में उस टाइम पर होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको क्या चीज ड्राइव करती है, आप कैसे पर्सन हो। लाइक मैं पर्सनली अगर बात करूं, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2013 में, और 2011 में मैंने NFL के अंदर ट्रेनिंग की थी, 2012 में IUCL पानीपत में ट्रेनिंग की थी, और दोनों जगह इंटर्नशिप करके मैंने सोच लिया था कि PSU में तो नहीं जाना है, कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाना है, आई एम नॉट द पर्सन कि मुझे 9 to 5 में काम करना है। एंड 2008 से मैं टीचिंग में था, फाइनली डिसाइडेड कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है, और आज मैं बहुत खुश हूँ इस लाइन से, इट्स माय पैशन। और हर साल मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ, हर साल मेरा चैलेंज होता है कि लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया
उसको इस साल मुझे बेटर तरीके से पढ़ाना है, तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है। तो अगर आप भी ऐसे पर्सन हो, खुद को अपडेट रखना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, रेस के अंदर बाकियों को आगे पीछे छोड़ के खुद आगे भागना चाहते हो, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर इज योर कप ऑफ टी। और अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मुझे एक ठीक लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, सिक्योर लाइफ जीनी है, शांति वाली लाइफ जीनी है, तो डेफिनेटली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बने हैं। तो श्वेता, अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि बीइंग ए केमिकल इंजीनियर, लाइक आपने मास्टर्स की, फिर आरएफसीएल में काम किया, तो स्किल सेट आपका कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, ठीक है। अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के इतने साल काम करने के बाद जब आपने आईएम में गए, वहां पे एमबीए स्टार्ट की, कहना आसान है, बट फॉर एन इंजीनियरिंग गाय और गर्ल गोइंग इनटू द एमबीए एंड देन 2 साल वहां पे पढ़ना सीखना, क्योंकि आईएम अपने आप पे एक बहुत एक्सटेंसिव एमबीए है, मतलब जाना जितना मुश्किल है, वहां पे 2 साल सरवाइव करना उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है ना। चाहे उनके असाइनमेंट्स है, चाहे उनकी रिसर्च है, डेली बेसिस पे केस स्टडीज है, उनके ऊपर काम करना, मतलब पूरा दिन, इट्स ए 24 आवर जॉब बीइंग इन 2 ईयर एमबीए इन आईएम। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और बीइंग ए केमिकल इंजीनियर कितना टफ था, कितना आसान था, तो उसके बारे में एक बार बताओ। So basically I'll start with my background first. तो बिल्कुल। मेरा जैसे बैचलर था बनस्ली से, सो दैट वाज अ वेरी मीडियोकर कॉलेज के, नॉर्मल था, बहुत कुछ इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं था. देन आई वेंट इनटू आईआईटी दिल्ली, तो अगेन दैट वाज अ अपग्रेड टू मी. सो बेसिकली आई ऑलवेज कंसिडर दिस ड्राइविंग फोर्स as very high rather than the IIT to IIM driving एक force. बात है। Why? Because फॉर अ मिडिल केयर पर्सन टू थिंक कि मैं ये अचीव कर सकती हूँ लाइफ में, दैट वाज अ ड्रीम. आईआईटी ने मुझे इनफ कॉन्फिडेंस किया कि अब मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ. सो एनीथिंग वाज लाइक कि आई नीड टू पुट माय थॉट एंड हार्ड वर्क इनटू इट, तो अचीव कुछ भी हो जाएगा. लेकिन वो वाला जंप हमेशा से मतलब मेरे लिए ज्यादा एक्सटेंसिव था बेसिकली. ठीक बात है। तो पहले आईआईटी में जब वो एक बेस सेटल हो गया, खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया, दैट वाज द थिंग दैट आई अर्न देयर बेसिकली, कि अब ठीक यहाँ से बात है। कुछ भी कर सकते हैं. इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं सोचूंगी तो मैं कर लूंगी खुद से. दिस कॉन्फिडेंस आईआईटी गेव मी. सो बस आईएम में जाने वाला ये था कि देयर इट्स लाइक यहाँ पे हम क्या सिर्फ केमिकल इंजीनियर नॉलेज वाले लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. आईएम में ये चीज बिल्कुल फ्लिप है. बिल्कुल। देयर यू आर स्टडिंग विद person who has done their CA, their CFA, BCom, or whatnot. Like you सही can बात name it, and people from that courses will be there. So सबके लिए वहां पे एडवांटेज है, बट आई डोंट थिंक बीइंग एन इंजीनियर इतने ज्यादा कुछ एडवांटेज था वहां पे. है। और स्पेशली मेरा था, और बहुत साल पहले था, तो मुझे तो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी इतने ज्यादा याद नहीं थे, क्योंकि केमिकल के तो पूछेंगे नहीं अब, वो बेसिक इंजीनियरिंग पूछेंगे, वो भी भूल गए. तो अभी क्या करना है वहां पे. तो वहां पे मेजरली फाइनेंस और जो अपने इकोनॉमिक्स कोर्सेज हैं वो बहुत एक्सटेंसिव थे. बट आई ऑलवेज बिलीव कि ऐसे अगर मैं वहां पे मार्क्स लेके आ जाऊं लेकिन आई कुड नॉट जस्टिफाई, तो मेरा हमेशा से वही एटीट्यूड था कि मेरी पर्सनालिटी ग्रोथ होनी चाहिए, सही क्योंकि बात आई एम हियर फॉर दैट, नॉट फॉर द रिपोर्ट्स और द मार्कशीट्स. वो है लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड वो इतना मैटर नहीं करती है, अनलेस अंटिल यू जस्टिफाइंग दैट विद द पर्सनल ग्रोथ यू हैव हैड देयर. तो मैंने वो चीज वहां से सीखा. आई रिमेम्बर व्हेन आई एंटर्ड इनटू आईएम कैल, इवन मेरे कैट के टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा था कि मतलब आई एम 30 राइट नाउ, एंड व्हेन आई एंटर्ड इनटू आई एम कैलकाटा आई वाज 28 or 27. So है। for a person with this much experience to go or to enter into a flagship program जहाँ पे एवरेज एज ही 22-23 है, आई एम कैलकाटा का 22 अराउंड ही है, कि वहाँ ठीक। पे 60% फ्रेशर्स ही आते हैं. तो टू एडजस्ट विद पीपल, तो दैट टुक अ मेंटल एक प्रिपरेशन फॉर मी कि मैं ऐसी जगह जाने वाली. बट सही बात है। वंस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आई थिंक एवरीथिंग कैन बी अचीवेबल. बट वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि ठीक है छोटे बच्चे तो क्या मतलब मैं मेच्योरली बिहेव करूंगी और क्या कर सकते हैं. दैट इज नो अदर ऑप्शन टू इट, राइट? यू हैव टू एक्ट मेच्योरली, यू हैव टू एक्ट कि जो भी चीज आएगी, जो भी चैलेंजेस आएंगी, यू विल बी रेडी फॉर दैट. मेरे को मतलब जैसे ऐसे था कि बहुत लोगों ने बहुत डराया, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत डराया इनफैक्ट, कि बहुत काम कराते हैं, देख लो बेटा ये वो. तो फिर मैंने वही बोला कि आई नो माई सेल्फ कि एक चीज कि आई एम हार्ड वर्किंग, सही मेहनत बात। यहाँ पे भी करनी है, वहां पे भी करनी है. सो आई रादर डू दैट. मैं अपनी मेहनत के उस पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इतना मुझे पता है. मैं काम से, आई एम नॉट द पर्सन हु विल शाई अवे फ्रॉम वर्क. आई वांट वर्क इन माय लाइफ. तो इफ आई एम रेडी टू डू दैट, आई कैन डू एनीथिंग. मतलब मुझे मेरा वही मेंटल था, और मेंटल स्टेट के लिए वो प्रिपेयर भी होके जाना चाहिए, आई थिंक.
तो वहाँ के कोर्सेज वर वेरी एक्सटेंसिव टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि एट दिस एज ऑल्सो, मतलब कीपिंग के मैं इतनी अब हो गया अभी एज, उसमें अब न्यू कोर्सेज न्यू चीजों के लिए अडाप्ट करना वाज वेरी डिफिकल्ट। दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग आई हैड, एंड दैट टू कि लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, मे बी माई एनर्जी लेवल्स वर नॉट अप टू देम, ठीक है। तो उस जो भी विंडो है, जितने एनर्जी लेवल्स है, उसमें मल्टीपल चीजें अकोमोडेट करनी है। एकेडमिक्स इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ देयर, प्लेसमेंट्स एंटायरली अलग हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी पर्सनल चीजें एंटायरली अलग है, और ये सब इतना ज्यादा टाइम ले लेती है। मैं आपको बताती हूँ, रूटीनली स्टार्टिंग के 3 महीने जो है, उनमें वहां पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, इट्स अ टर्म सिस्टम। तो हर ओके 3 महीने का एक टर्म है, तो टोटल 6 टर्म्स है। तो ओके ऑलरेडी बहुत स्क्वीज्ड इन है कि हर 3 महीने में चीजें चेंज हो रही है, हर महीने एग्जाम हो रहे हैं, महीने में 2 बार क्विज हो रहा है, और ये सब हो रहा है। उसके बाद प्लेसमेंट्स, आपका समर प्लेसमेंट साथ के साथ स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अगेन वेरी एक्सपेंसिव। I remember walking around to seniors, and seniors who are like 3-4 years junior to me, basically in age or in experience. They are doing my CV review. They are telling me कि अब ये करो, सुबह के 4 बजे तक मैं लोगों के पास घूम रही हूँ, अच्छा CV कैसे बनाऊं, ये करो। But it's like the one thing you have to do is you do not have to have the ego. Put your ego aside. Ask for सही help बात है, whenever you need it. सही बात जहां पे तुम्हें लगे नहीं हो रहा है, आस्क फॉर हेल्प इमीडिएटली। मतलब ये चीज मैंने अपने पूरे एमबीए में सीखी है। कहीं भी छोटा डाउट आ रहा है, बड़ा डाउट हो रहा है, डोंट कीप इट योर सेल्फ कि सामने वाला जज करेगा कर ले, वो उसकी गलती है, जो भी है वो उसका थॉट प्रोसेस है। मेरे को अपने काम से मतलब है, आई एम गोइंग टू टेक हेल्प बिकॉज आई नीड इट राइट नाउ। So this is what I did there. I asked for help whenever needed, if it's placements or maybe interview preparation के लिए, क्योंकि मैंने तो 4 साल पहले पीएसयू का दिया था। अब सही पीएसयू बात के है, इंटरव्यूज आर बिट ऑन द टेक्निकल साइड, बट दे बिल्कुल डोंट जज यू ऑन सॉफ्ट स्किल्स, वेयरएज एमबीए का एंटायरली सॉफ्ट स्किल्स पे है, और टेक्निकल तो वो पूछेंगे। तो वो चीज एक बहुत बड़ा था। बट आई वाज लकी इनफ कि मेरा कंसल्टिंग में हुआ। कंसल्टिंग में आई वाज द फर्स्ट, आई entered into the room, I gave my interview, I was selected both times, मेरे finals में भी और मेरे internship में भी। So again, मेरी consulting is basically the domain which deals with expertise, so I already had this plant का expertise along with soft skills. So ये वाला कि उन्होंने technical चीजें पूछी, अच्छा प्लांट में आप क्या करते थे, so what all changes। और ऐसे नहीं, आपको उसको लीडरशिप में दिखाना था, बिकॉज प्लांट में somehow we are in the थोड़ा सा बैक सीट पे, बट हमने क्या किया एक्चुअली वो फोर फ्रंट पे बिल्कुल दिखाना होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो फोर फ्रंट पे लाने वाला काम वहां पे ज्यादा था पूरे एमबीए में, कि यू हैव टू डील विद मल्टीपल थिंग्स ऑल टुगेदर। यू हैव टू मल्टीटास्क बेसिकली योर एंटायर डे, एंड योर डे माइट एंड एट लाइक 1 or 2, not even end there, मतलब it's like you can take off and you will be missing out on things, but ठीक है। लेकिन it start with 8:30 पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, तो it was very extensive क्योंकि बहुत मल्टीपल चीजें were going there, so again yeah। बट अल्टीमेटली इट्स डूएबल, अगर कोई करना नहीं नहीं, चाहे तो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब मैंने आपको वही बोला ना कि इफ यू आर हार्ड वर्किंग तो एनीथिंग इज डुएबल। इट माइट टेक सम टाइम, इट्स नॉट लाइक आई वोंट से कि हाँ ठीक है मैं गई और मुझे लगा कि हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मेरे को बहुत टाइम लगा, आई क्राइड अ लॉट ऑफ टाइम कि नहीं हो रहा है। इवन माई ड्यूरिंग माई केड प्रेप आई वाज सो डिमोटिवेटेड, आई वाज लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई जस्ट वांट टू गिव अप, बट आई डिड नॉट गिव अप। आई फाइट इवन हार्डर एंड आई रीच देयर समहाउ। सो दिस इज द एटीट्यूड दैट यू नीड टू कैरी, कि अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है डबल मेहनत करेंगे, बट गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर। यू नीड टू वर्क हार्ड। और बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, आई थिंक रिगार्डलेस था वो कि ठीक है, इट हेल्प मी इन इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू में जो था वो पर्टिकुलर ऑयल एंड गैस का था मेरा, तो वो वाले स्किल सेट देख रहे थे, तो इट हेल्प मी देयर। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसा कुछ इंजीनियर का या फिर किसी का भी है। अल्टीमेटली यू हैव टू हैव द सॉफ्ट स्किल्स, यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस दैट इज नीडेड। So if you have all of these things, I think it's going to work out regardless, मतलब regardless of anything. बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इंडिया के जो बेस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है और इंजीनियरिंग हम बोलते हैं आईआईटीज है, और मास्टर बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए हम बोलते हैं आईएम्स है। तो ये आईआईटीज और आईएम्स में जाके एक्चुअली में ना मैं आपके थ्रू बताना चाह रहा हूँ बच्चों को कि होता क्या है। लाइक आपने भी डिस्कस किया कि जब मैं आईआईटी दिल्ली गई तो वो मेरा एक अपग्रेड था फ्रॉम द बनस्थली यूनिवर्सिटी, और वहाँ जाके मैंने अपने अंदर देखा कि चेंजेस फील किए, और फिर मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर आप अभी आईआईएम में गए, वो भी आपने देखा, जर्नी आपने 2 साल की जी। तो वो क्या चीज़ है जो बच्चे मिस आउट कर जाएंगे अगर मान लो वो आईआईटीज में नहीं जाते हैं, तो या जो दूसरी लाइन के आईएम्स में नहीं जाते हैं, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है इतने प्रेस्टिजियस है, प्रेस्टिजियस क्यों है, यहाँ पे जाके क्या मिलता है हमें? So basically, I will do like
बनस्थली था मेरा, एंड उसके बाद मेरा आईआईटी था. सो बोथ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज लाइक, बनस्थली में समथिंग वाज प्रमोटेड कि तुम कितना अच्छा रट्टा लगा सकते हो, कितने लेंदी पेपर लिख सकते हो. वेयर एज ऑन द आईआईटी, हाउ लॉजिकल यू आर, how inquisitive you are, how much knowledge you want, how much learning appetite you have. These are all the things which were preferred there. Ki even professors would encourage you to learn something new. Professors are very supportive in that sense. They encourage everything. ठीक है, honestly वो चीज बहुत detrimental था. And plus the peer group obviously, कि you have so good peer group that you will be learning everywhere. कि मतलब this is a thing when I used to say in my IIT Delhi days कि यहाँ की तो हवा में भी बहुत मोटिवेशन और लर्निंग है, कि वो वहां पे है. मतलब you are from IIT Delhi, so you can say that कि वहां पे है वैसा ऑरा. You can stand below the library. Then people were having such a wide and cheerful discussions on so many different things कि रोबोटिक्स से लेके व्हाट नॉट, मे बी डांस, बट डांस की भी लीगलिटीज और लॉजिकलिटीज में डिस्कशंस. इट्स एक आपको सोच लगेगा यार मैंने कभी उस पॉइंट से नहीं देखा चीजों को. सही बात है. So that is the wideness, that is the you basically the angle that it opens up to you. कि वो हम एक ना नॉर्मल, अगर हम किसी कॉलेज की बात करें, टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस जो होते हैं, वो उतना वाइडली नहीं सोच पाते चीजों को. वी हैव अ वेरी लिमिटेड पर्सपेक्टिव बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन विद दोस पीपल आल्सो. तो वो इतना वाइडली नहीं सोच पाते. आई हैव वेरी लिमिटेड थिंकिंग. ठीक है, प्रोफेसर ने इतना पढ़ा दिया तो ये एक्स्ट्रा से क्यों सोचना है. तो आईआईटी में उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि जो प्रोफेसर ने बताया अब तो हमें उसके आगे सोचना है. उसने तो हमें बस बेसिक फाउंडेशन ले आउट किया है ना, उसके आगे उसको कैसे बिल्डअप करना, दैट इज द इनोवेशन वी And आर लुकिंग फॉर. especially I remember the open book exams that were used Yeah, to be there. वो ओपन बुक which were not at all helpful unless until you knew the things. So yeah, कि मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार बताओ कितनी अच्छी चीज है कि हमारे जैसे कॉलेज में कि बनसली में अगर ऐसे बोल दिया जाता कि ओपन बुक है तो लाइक पीपल विल गॉट मैड. ठीक है, लेकिन आईआईटी में इट वाज नॉट एट ऑल हेल्पफुल बिकॉज उसके अलावा ही वो कुछ पूछने वाले हैं. तो दैट इज द थिंकिंग कि वो एक बेसिकली तब ऐसा लगता था कि यार थोड़ा सा फालतू है, क्यों कर रहे, बहुत ओवर हो रहा है. लेकिन वो एक पुश था टू एक्चुअली सी यू टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स बेसिकली, क्योंकि वही जाके आपको आगे जाके हेल्प करेगा. एंड सेम थिंग्स आई थिंक which are promoted and to all the top colleges throughout, कि वैसा discussion you can see going around here and there, even if they are having a 5 minute discussion चाय के पास, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, they'll be discussing things like that. Whereas on the tier 3 college the discussion points are completely random and completely useless. That was my experience, but mostly that. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने. और यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आईआईटीज आईएम्स क्या करते हैं, आपको पुश करते हैं बियॉन्ड योर लिमिट्स. मैं अगर अपने आईआईटीज मास्टर्स के दिन अगर याद करूं, मुझे आज भी याद है, कई बार ये मन में ख्याल आता था कि ठीक है यार, अगर एमटेक नहीं भी हुआ तो क्या, बीटेक तो हूं ना मैं. कोई कोई मुझसे मेरी बीटेक तो नहीं ले सकता ना. मतलब एमटेक करते करते भी डाउट होता था कि मैं पूरा कर भी पाऊंगा, नहीं पूरा कर पाऊंगा, कहीं बीच में प्रॉब्लम ना आ जाए, एक्सटेंशन ना दे दे, कुछ भी हो सकता है कि 2 साल में ही होगी एमटेक या नहीं होगी. तो देयर आर मेनी डाउट्स अराउंड कि पूरा पूरा दिन लैब में काम करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वहां से गाइड सुना रहा है, खुद का प्रेशर है. सो लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पुश करते हो, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पता नहीं लगता कि हम एक बड़ी चीज करने के कैपेबल हो जाते हैं, Exactly. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक बोला, द डिस्कशंस विद द स्टूडेंट्स, विद द सीनियर्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, तो वो डिस्कशन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. और मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, आज मैं जैसा पढ़ा पा रहा हूँ उसमें आईआईटी दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है, मेरे क्लासमेट्स का बहुत बड़ा रोल है, मेरे सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया और आगे मैं वो बच्चों को दे पाया. तो इन बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके आपको एक्सपोजर मिलता है, और वो एक्सपोजर आपकी पर्सनालिटी बदलने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है. और जब आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो ये डिस्कशन ही खत्म हो जाता है कि प्राइवेट या पीएसयू. फिर आप जिस पे हाथ रखो, जो मन में ठान लो, फिर आपके अंदर एक विश्वास रहता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, Exactly. बिकॉज वो चीज आपको ये इंस्टीट्यूशन सिखा देते हैं. इसलिए मैं हर एक बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि लाइफ में यार एक बार इंस्टीट्यूशन में जरूर जाओ. एंड स्पेशली इफ यू आर ए केमिकल इंजीनियर, तो आपके लिए तो आईआईटीज में जाना बहुत ही आसान है, बिकॉज रिलेटिवली टू अदर ब्रांचेस कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है. अगर आप ठीक ठाक रैंक भी ले आते हो तो आईआईटीज आराम से मिल जाती है. इस साल तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास की अगर मैं बात करूं तो 500 रैंक तक मिली है. तो अगर 500 रैंक भी आप ले आते हो और इन 3 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में चले जाते हो, तो देयर इज लॉट टू लर्न. एंड सबसे बड़ी बात एक जो मैंने और सीखी अपनी लाइफ में, कि नेटवर्क बनता है आपका.
बिकॉज आपके जो सीनियर्स है और आपके जो क्लासमेट्स और आपके जो जूनियर्स है, ये 3 वो लोग हैं जो अल्टीमेटली अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा ही करने वाले हैं, अच्छी जगह जाने वाले हैं और वेरियस वेरियस इंडस्ट्रीज में जाने वाले हैं। तो सोचो आपके फोन बुक के अंदर 100 कॉन्टेक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, है ना? नहीं तो अदरवाइज तुम बीटेक हो तो क्या, तुम्हारी फोन बुक में एक बंदा होगा ये इस प्राइवेट जॉब के अंदर, वो उस प्राइवेट जॉब के अंदर, वो 2 लाख के पैकेज पे, कोई 3 लाख के पैकेज पे, कोई 4 लाख के पैकेज पे। लेकिन जब आप आईआईटी से पास आउट करोगे तो आपकी जो फोन बुक होगी, अच्छा ये है, ये है, ये उधर है, उस कंपनी का ये है, ये उस कंपनी में सीनियर मैनेजर है, ये लीड है, ये वो है। कल को वही बंदे आगे जाके वीपी बनेंगे, एवीपी बनेंगे, फाउंडर्स बनेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो जो नेटवर्क बनता है ना, वो बड़ा गजब बनता है। और अल्टीमेटली मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ कि किसी इंसान की नेटवर्क ही उसकी नेटवर्थ होती है। तो आप अगर अपनी नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हो तो अपना नेटवर्क तो आपको बेटर करना ही पड़ेगा। ओके श्वेता, आप एक्सपीरियंस मैंने आपसे पूछा आईएम्स का, आपने बताया अच्छे से। अब एक बार आगे की बात कर लेते हैं। अभी जो प्रेजेंटली काम कर रहे हो, लाइक आपने बीच में डिस्कस किया कि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ऑयल एंड गैस का भी पूछा था, और फिर आपने बोला कि अब आप कंसल्टिंग के काम में हो जहाँ पे इंजीनियरिंग स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स और का एक मर्जर है बेसिकली, है ना? तो उस लाइन के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो स्टूडेंट्स को कि कैसे वो काम करती है, और केमिकल इंजीनियर्स या कोई भी इंजीनियर्स अगर उस लाइन में जाते हैं तो कितना अपस्किल या कितना अपटर्न वो देख सकते हैं अपनी लाइफ में? So basically, there are a lot of consulting groups that comes to all the B schools basically. So I particularly had the experience with Accenture because I ओके, interned there and I'm currently working there. ओके, So during my internship, I was associated with the oil and gas client. It was a North American client. So basically, अच्छा, उसका oil and gas का मुझे experience था सारा, मुझे पता था how the stream network and ये सब. So it was under the sustainability head कि we had to help them be more sustainable. So what all reduces you can do with all the emissions, all the consumption, gas consumption and all. So that what I was handling. This is the technical part of ठीक है, you know because why they selected me particularly. ठीक है, It's not like कि अगर बाकी बाकी चीजों के लिए भी आता है, it is a fit के बेसिकली के फिट कैसा बन रहा है वो उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करते हैं. सही बात है। तो टू दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आई वाज अ वेरी गुड फिट. तो अभी मेरी एमबी स्किल्स कहाँ से आई कि अब वो जो डाटा हमें इतना सारा मिल गया प्लांट में क्या है वो तो मेरे को 6 महीने का डाटा दे देंगे. सही हाउ टू बात है। मेक good insights out of it, how to हम्म, derive insights out of it, where can be more useful, we can I plot graphs and say कि अच्छा यहाँ पे ये एक मुझे लैग दिख रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएशन हम कर सकते हैं. वेरी सो गुड, दिस इज द थिंग. ऐसे नहीं कि आप डे वन जाते के दे गिव यू सम जॉब की नहीं भाई आज से डिलीवरेबल स्टार्ट करो. नो, सही बात दे है। मेक यू लर्न, दे मेक यू यू नो एकदम अडाप्ट करना कि ठीक है यू आर सेटल्ड नाउ एंड यू आर लर्निंग थिंग्स एंड देन दे यू नो टीच यू हेयर एंड देयर एंड they'll expect you कि ठीक है अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस करना स्टार्ट करो. So ultimately, it's like whenever or wherever you join, the companies will be very good. They'll respect you from the college you have, come through. तो उस हम्म, चीज की आपको हमेशा से एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी. आप किसी भी फील्ड में जाओ, नॉट ओनली इन कंसल्टिंग बट इन मार्केटिंग, सेल्स और एनीथिंग यू कैन गो. मतलब डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है. मेरा ये था कि मेरे को अपना सिंस मेरा ऐसे एक्सपीरियंस रहा था कि मैंने कमिश्निंग में इतना ज्यादा काम किया था तो मेरे को उससे टच नहीं हटाना. तो इसलिए मेरा कंसल्टिंग एक प्रेफरेंस था कि मैं उसको थोड़ा सा यूज कर सकूं आगे जाके भी, बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू यूज, जो कि मुझे इंटर्नशिप में भी लगा कि मतलब ठीक है मेरे को कांस्टेंट फीडबैक मिला कि आई हैड अ वेरी गुड इंडस्ट्री नॉलेज और ऐसे करके. ठीक है, तो ये करके आप आगे ऐसे बिल्ड कर सकते हैं. और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो एमबीए है इटसेल्फ इट विल प्रिपेयर यू फॉर एनीथिंग दैट इज गोइंग टू कम टू योर वे. कि बी इट एनीथिंग के 12 घंटे जॉब करना है तो वो आप काम करके आ चुके होंगे, तो एमबीए के बाद इज गोइंग टू लुक इजी टू यू ओनली कि ठीक है अच्छा पीपीटीज बनानी है तो मैं करता ही था सारी क्लासेस सही में, ये बात तो है। हो जाएगा. ठीक है, लेट नाइट तक ये सब काम करना, इतने सारे डेटा से मुझे कुछ इंसाइट्स ड्राइव करने, ये तो मैंने कर रखा है, ये हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू वो आपसे पूछ लेंगे जो आपको नहीं आता होगा. एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी डन इन योर एमबीए. दिस इज द ओनली बेस दे नीडेड टू मेक यू वर्क और बेसिकली कंट्रीब्यूट फर्दर. डाटा के जादूगर एक तरह से। हाँ एग्जैक्टली मतलब. तो बिल्कुल आज की डेट में मैंने देखा भी है कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है कंपनीज के लिए, चाहे वो एनर्जी ऑडिट करवाना हो, ठीक है,
एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि वो कितना कोस्ट कर रहे हैं, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, उस कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस करना हो, सोशल लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर पा रही है वो कंपनी, कितना चेंज कर रही है या कैसे खराब कर रही है, बढ़ा रही है, वो सब चीज़ें देखना, है ना? और साथ ही साथ उनकी मैंने देखा है कि काफ़ी फोकस होता है गवर्नेंस के ऊपर, कि कंपनी के Yes. अंदर कैसा गवर्नेंस है इस समय, कैसा मैनेजमेंट काम कर रही है, कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए कंपनीज क्या करती है, फर्म्स हायर करती है, कंसल्टिंग लेती है कि किस तरह से चीज़ों को बेटर बनाया जा सके और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सके। जो सीरियस कंपनीज है, जो आगे बढ़ना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देती है ना? और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल नॉलेज आपको चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको कर पाते हो। तो एक केमिकल इंजीनियर अगर वो एक कंसल्टिंग की लाइन में जाना चाहता है, तो डेफिनिटली टेक्निकल साइड का तो नॉलेज होना ही होना चाहिए उसे, है ना? बिकॉज़ विदाउट बिना बिना उसके तो वो डाटा समझ ही नहीं पाएगा, है ना? Exactly. और उसके बाद लेट्स से अगर वो एमबीए करता है तो एमबीए के थ्रू जा सकता है। अदरवाइज़ अगर वो किसी कंपनी में जॉइन कर लेता है तो ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस वो हाँ. चीज़ें सीख सकता है और सीख कर फिर वो डेफिनिटली इस लाइन के अंदर आ सकता है। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज़ है और कंसल्टिंग में जो कंपनी है वो तो सबको ही कंसल्ट करती है। अब लेट्स से Exactly. कोई इस बैकग्राउंड की कंपनी है कि जो मान लो पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, तो डेफिनिटली कंसल्टिंग वालों के पास एक टीम में ऐसा भी पर्सन होगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा और जिसको एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ को समझने का और फिर एक्सपीरियंस होगा उस डाटा से इंसाइट निकालने का। सिमिलरली अलग-अलग लाइन्स की कंपनी के लिए फिर कंसल्टिंग के पास अलग-अलग तरह के जो वर्क फोर्स है वो भी है। तो हमारे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत तरह की इंडस्ट्रीज है और जब उन इंडस्ट्रीज को आगे कंसल्टिंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग मतलब एक केमिकल इंजीनियर जो आगे जाके प्रोसेस इंजीनियर बनता है और फिर डाटा एनालिटिक्स में काम करता है, चीज़ें सीखता है, तो डेफिनिटली एक बहुत अच्छी लाइन है ये। और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा इस लाइन के अंदर स्किल जनरेट करना आसान भी नहीं है, टाइम लगता है चीज़ें सीखने में, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो, वो स्किल आपके पास आ जाती है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है और कंपनी के लिए आप वैल्यूएबल हो जाते हो बिकॉज़ बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो ये काम बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। Exactly. मतलब हम ये बोल सकते हैं मैं ये बोल सकता हूँ कि अ, दुनिया में हम ऐसे लोगों को गिन सकते हैं, इतने कम लोग हैं। जबकि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिज़नेसेस धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कंसल्टिंग की नीड बढ़ती जा रही है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले इतनी ज़्यादा शायद अवेयरनेस नहीं थी कंपनीज़ में। हीट Hmm. लॉस हो रही है तो हो रही है, फ्लू गैस जा रही है तो जा रही है, पॉल्यूशन हो रहा है तो हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है तो हो रहा है। बट अब धीरे-धीरे हर कंपनी एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट भी कार्बन न्यूट्रल होना चाह रही है, एफिशिएंट बनना चाह रही है, तो वो बिना कंसल्टिंग के हो ही नहीं सकता है। तो इस लाइन में आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो बीइंग ए केमिकल इंजीनियर अगर आप इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो डेफिनिटली सबसे पहले आपको एक प्रोसेस इंजीनियरिंग फर्म आपको जॉइन करनी पड़ेगी, जो कि आप मास्टर्स के थ्रू भी कर सकते हो और उसको जॉइन करने के बाद लेट्स से अगर आप उसी में कंटिन्यू करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो और डेफिनिटली एमबीए करने के बाद भी आप उस लाइन में जा सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो लाइन बहुत अच्छी है लेकिन ये और काफ़ी ग्रोथ है इस लाइन के अंदर और वर्ल्ड वाइड ग्रोथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप करके इंडिया में ही रहोगे, आप पूरी दुनिया में यू विल बिकम ग्लोबल, फ्रॉम लोकल यू विल बिकम ग्लोबल, ये ऐसी लाइन है बिकॉज पूरी दुनिया में इंडस्ट्री है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज और हर जगह आपकी डिमांड होगी और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। श्वेता, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जर्नी को अगर देखें तो जब जब आपने सोचा कुछ करने का, लाइक गेट करने का सोचा, वो क्रैक कर दिया, फिर पीएसयू में जाने की सोचा वो क्रैक कर दिया, कैट में जाने की सोचा वो भी क्रैक हो गया, एमबीए भी आपने कर ली, अब प्लेसमेंट भी आपने ले ली, तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे आता है एक स्टूडेंट के अंदर? लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट जो आपको भी देख रहा है, वो बेचारा स्टूडेंट कहता है कि सर मैं लेक्चर्स करूँ, नोट्स रिवाइज करूँ, पीवाईक्यू करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ इतने से काम में ही, मुझे तो डाउट है अपने ऊपर कि मैं गेट कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और एक तरफ आप हो जो कि जो सोचते हो वो कर देते हो, तो वो अपने अंदर चीज कैसे लाया जाए, है ना? तो वो एक बार स्टूडेंट को बताओ सो दैट उनके अंदर ये विश्वास है कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी वो सोच रहे हैं।
तो पहले तो जैसे आपने भी बोला थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आई अच्छा। ब्रिंग अ फैक्ट कि मेरा जो एमटेक है और जो बीटेक है उसके बीच में 1 साल का ड्रॉप है। ठीक तो है। ऐसा नहीं था, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर गेट, आई क्लियर गेट बिल्कुल। इन दैट ईयर ऑल्सो, आई गॉट बिल्कुल। एक्सेप्टेंस फ्रॉम आईआईटी रुड़की। बट मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो ठीक बात है। मतलब आई टुक अ ब्रेक बेसिकली, कि मतलब ठीक है रैंक इतना अच्छा नहीं है जो भी है रीजन से, तो इट वाज नॉट लाइक कि मैंने जो सोचा वो करते चले गए ऐसे करके। तो हर किसी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, हर्डल्स आते चैलेंजेस हैं। आते हैं, बिल्कुल। बट दी थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट, कि पहले पहले हम्म। उससे भी पहले से मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोचना कि हम किस चीज के लिए बने हैं। एग्जैक्टली। मैं सोचूं कि कोई बंदा यूपीएससी कर रहा है, मैं जाके आज बैठ के यूपीएससी कर लूं। मेरे सही पेरेंट्स ने बात है। बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे को पता दैट वाज नॉट माय कॉलिंग। कि वो लोगों के लिए अलग सा होता है, वो 6-7 साल एक बार में दे सकते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगी। मुझे एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए कि आए और बस मैं जाके सीधा स्टार्ट कर दूं। कि हम्म। ऐसा ना हो मुझे 5-6 साल किसी चीज में देने पड़े। ठीक बात है। तो वो चीज आपको पहले खुद से करनी पड़ेगी कि मैं किस चीज के लिए बनी हूँ। एक रियलिस्टिक आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं तो भैया देखो इतना पानी में हूँ और इतना बाहर हूँ, तो यही है, अपने औकात अनुसार ये चीज हो पाएगी। ठीक बात क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़े गोल्स बना दोगे, आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो अगेन वो आपका कॉन्फिडेंस आप लूज ही करोगे। गेन तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपके ईयर्स और लूज होते जा रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, एक तो वो चीज मुझे लगता है कि कोई भी चीज का स्टार्ट होता है गुड एनालिसिस से, कि हम आज कहाँ पे, आप अपना करंट स्टेट एनालिसिस करो कि मैं आज कितना पानी में हूँ, मैं खुद को कितना पुश कर सकता हूँ, मेरे गोल्स कितने रियलिस्टिक हैं। ठीक है, रियलिस्टिक से थोड़ा ऊपर चलेगा, लेकिन बहुत ऊपर तो नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है। ठीक है, तो हम पहले वो स्टेप तक जाए कि हाँ ठीक है ये चीज अचीवेबल है, अब ये चीज मुझे करनी है, इतना महीना बचा है, अब ये। अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होती है कंसिस्टेंसी। आई रिमेम्बर मेरे कैट से 1 हफ्ता पहले भी मेरे VARC जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें 4 नंबर आए थे। ओके। एंड आई वाज शैटर्ड कि मैंने तो अपने जॉब भी दाव पे लगा दिए इसके लिए, सब कुछ छोड़ के मैं बैठ गई हूँ घर पे, अब कैसे। तो वहां पे अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वहां पे डबल फाइट करनी है। लोग वहां पे लूज करते हैं, लेकिन लूज आपको वहां कर। पे डबल फाइट करनी है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो ये कौन करेगा। मतलब आई रिमेम्बर कि मेरे को आईआईटी के टाइम पे आई मेट सम वेरी गुड पीपल। तो उनसे मेरे को एक चीज सीखने को मिली कि लाइफ में हमेशा मतलब खुद को ये सोचो कि जो वहां पे भी लोग हैं वो भी मेरे जैसे ही लोग हैं, वो भी एक टाइम पे इस सिचुएशन पे रहे होंगे। वो वहां पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूँ, अगर मैं मैं भी नहीं पहुंच करूंगी तो सकता हूँ। कौन करेगा। अगर वो आप एक थॉट प्रोसेस में अगर अपना चेंज लेके आ गए, तो आई थिंक एनीथिंग इज अचीवेबल इन लाइफ। कि अगर आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है, और खुद को वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। एक तो वो नेगेटिविटी होती है ना, हम खुद को ही बोल देते हैं मेरे से तो नहीं हो रहा है, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगी। ये वो कुछ नहीं बोलना है, मेरे से ही होगा, मैं ही करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी लोगों को, कोई भी मुझसे कितना भी उल्टा बोले। मतलब आई थिंक आई एम फॉलोइंग दिस फॉर पास्ट 6-7 years नाउ, कि मैं किसी की कुछ नहीं सुनती हूँ। ड्यूरिंग माई MBA डेज इवन, मेरी इंटर्नशिप से मुझे PPO नहीं आया था, आई वो शार्टेड, लेकिन आई न्यू कि मेरे को इसी कंपनी में जाना है। फाइनल्स में कंपनी मुझे वापस लेके गई है। तो आई थिंक दैट वाज द मैनिफेस्टेशन आई डिड देयर, कि मेरे को यहीं जाना है, और मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। आई वाज द बेस्ट कैंडिडेट, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, एंड आई विल बी द बेस्ट कैंडिडेट। तो मैं वो करके दिखाऊंगी, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, वो मैं करूंगी, अपना 100% दूंगी। तो वो चीज आई थिंक कॉन्स्टेंटली खुद को एक रिवाइज कराना कि ये चीजें मैं करूंगी, मुझसे होगी। आज मैं भी नहीं कर रही, आज टुडे विल नॉट बी माई गुड डे, लेकिन कल होगा। ठीक है, क्या क्या है, एक रियलिस्टिक अपना करते रहना चाहिए, डुलुलू में नहीं रहना चाहिए। तो अपना अगर आपको लग रहा है कोई मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप बैक। एनालिसिस करो कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी है, मैं इसको और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। टॉक टू पीपल, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल। तो वो चीज आई थिंक ज्यादा की है, क्योंकि मेरे साथ बहुत टाइम तक ऐसे था कि मैं लोगों की हेल्प नहीं लेती थी। मेरे को लगता था मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, लोगों को क्या लगेगा, इसको ये भी नहीं आता, ये इतनी डम है, ये है, वो है, वो सब मेरे अंदर की चीजें थी। मे बी सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा है। अगर सोच भी रहा तो दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। आपका काम है अपने आप को बेटर करना, अपने रिजल्ट्स बेटर करना। तो आई थिंक दैट इज द की टेक अवे हेयर, कि खुद को बेटर करते रहना कॉन्स्टेंटली। टेक ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम पीपल, टेक ऑनेस्ट एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ, कि वो एक ऑनेस्टी से, आपसे ज्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं हो सकता। अगर मुझे पता है कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ यहाँ पे खुद से, तो ये झूठ ही रहेगा, चाहे से मैं इसे बिल्कुल। 10 महीने बाद देखूं, क्या मैं आज देखूं। तो बिल्कुल। वो एक ऑनेस्टी खुद से मेंटेन रखनी है, कि एम आई गिविंग माई 100%, मैं बोल रही हूँ 100% दूंगी, लेकिन क्या मैं इस चीज को 100% दे रही हूँ, या मैं फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, या मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज कर रही हूँ।
मतलब जहां पे भी आपको जो भी आप पॉइंट लिस्ट डाउन करो कि अच्छा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, मे बी आप शायद से ऐसे एनवायरमेंट में बैठे हो जहाँ पे कंसंट्रेट करना टफ हो रहा है, तो लिस्ट आउट द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग दिस, इट कुड बी यू ऑल्सो कि आपका कंसंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो वो उस चीज पे काम करो लिस्ट डाउन करके, रादर देन कि उसको इग्नोर करने के। तो वो एक ऑनेस्टी आपको मेरे ख्याल से थ्रू आउट एक प्रिपरेशन स्टेज ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपको मेंटेन करनी चाहिए, एंड ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर गोल कि मेरे को यहाँ पे जाना, मैं यहाँ पे जाके चैन से बैठूंगा, नहीं तो मैं नहीं बैठ रहा। वो एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। सो कंसिस्टेंट रहना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। सक्सेस कभी मिल जाएगी तो कभी देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो तभी जब आप रहोगे। अगर एग्जैक्टली। आप ही नहीं हो तो फिर सक्सेस किसको मिलेगी? तो किसी और को मिलेगी जो रहेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन श्वेता, कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन रह पाती है जब मोटिवेशन भी हो अंदर, है ना? एक ड्राइविंग फोर्स आपको ड्राइव करती रहे। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे प्रिपरेशन कर रहे हैं बट हाफ हार्टेडली। मन करता है, मूड है तो ठीक है कर लिया, नहीं मूड है तो ठीक है 2 दिन नहीं पढ़ा। तो लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत दिखता है बच्चों के अंदर। अब वो क्यों है? बिकॉज करियर के बारे में अवेयर नहीं है, या आगे क्या उनके लाइफ बेटर बन सकते हैं उसके बारे में अवेयर नहीं है, या माइंड में क्या चल रहा है। आपको क्या चीज मोटिवेट करती थी जो बेसिकली एक के बाद एक आपने ये चीजें करी? So basically, I grew up in a setting where my mom was always very dependent on other family members. I grew up in that thoda sa orthodox karke. So she always pushed me to be very independent, very ambitious. So this is how I was brought up. uh, तो वो चीज हमेशा से थी कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांट टू टेक माय इंडिपेंडेंट डिसीजंस। ओके। लेकिन जो आपसे मोटिवेशन का आप बोल रहे थे, तो आई थिंक उस पार्ट पे इट वुड बी मोर, अगेन वो ऑनेस्टी वाला फैक्टर आता है कि क्या मेरे को ये करना है या नहीं। अगर मैं हाफ हार्टेडली कुछ भी करूंगी तो वो मुझसे नहीं होगा, बिकॉज माई जो स्किल्स है, जो मेरा टैलेंट है, वो मैच नहीं कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं बीएससी में चले जाऊं, लेकिन मेरे को वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वो नहीं मैच करेगा अल्टीमेटली, एंड आई विल बी फेलिंग अगर मैं वो पुश करूँ फालतू में और मेरा नहीं है वहां पे। तो वो अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है कि मेरा अंदर का जो मेरी क्वालिटीज हैं वो अलाइन कर रही है या नहीं, जो गोल मैं परस्यू कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही लेकिन मैं चाह रही हूँ करना, तो वो मोटिवेशन अपने आप से आएगा। मैं खुद वो चाहे से स्किल सेट मेरे को डेवलप करना पड़े, लेके आना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई डू एनीथिंग। लेकिन अगर वो चीज है ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है वो चीज करने का, तो मैं उसमें आज 1 साल दे दूं कि 2 साल दे दूं कि 3 साल दे दूं, वो अगेन नहीं होगा। दैट इज वेयर आई थिंक द मोटिवेशन विल कम फ्रॉम। जैसे आई एम भी अगेन, मेरा मोटिवेशन था, इट वाज नॉट लाइक माय पेरेंट्स ड्रीम और समथिंग, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माय पेरेंट्स पर से, आई वाज डूइंग बिकॉज आई वांटेड टू डू इट। तो आई वेंट इनटू पीएससी बिकॉज मेरे को पीएससी का था कि मेरे को जाना है, जाना है, जाना है। मेरे को आईएम का था, मेरे को आईएम कैलकाटा जाना है, जाना है, जाना है। तो दैट वाज माय इंटरनल मोटिवेशन विच केप्ट मी मूविंग ऑन, एंड विच एक्चुअली टुक मी टू प्लेसेस। इट वाज नॉट लाइक माय पेरेंट्स ड्रीम और ऐसे। ठीक है, उनका ड्रीम आपका ड्रीम एक हो सकता है, बट इट्स योर ड्रीम विच यू हैव टू वर्क फॉर अल्टीमेटली। आपके पेरेंट्स वहां पे, आप पैसा वहां पे भी कमा लोगे, वहां पे भी घर वालों को अल्टीमेटली बिल्कुल। खुश रख सकते हो, यू हैव अ बिल्कुल। बेटर लाइफ। लेकिन वहां पे आपका अलाइनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अल्टीमेटली क्या करना है। मैं चाहे से अभी गवर्नमेंट जॉब में होती, मेरे पेरेंट्स वहां पे भी खुश थे। बिल्कुल। मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, आई माइट बी अर्निंग मोर एंड आई माइट बी लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे भी खुश है। चाहे से मैं उतना ही पैसा उनको आज भी दे रही हूँ जितना मैं उस दिन दे रही थी, लेकिन वो उससे ज्यादा खुश है कि मैं खुश हूँ आज। मैं आई एम लिविंग अ गुड लाइफ, आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, आई एम बेटर सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। तो वो उसको देख के वो और ज्यादा खुश है, क्योंकि आज जब अपनी मम्मी से बात करती हूँ तो उन्हें पता चलता है कि आई एम लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल यहाँ पे मुंबई में, रादर देन पहले मैं जो साउथ में रहती थी। तो दे आर हैप्पी एनीवेज। तो वो पेरेंट्स इवेंचुअली दे टैग अलोंग कि आज नहीं तो कल, आज में भी वो आपकी करियर चॉइस से खुश नहीं होंगे, दे वांट कि तुम पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो, बट इवेंचुअली दे विल कम अराउंड। लेकिन आपको सक्सेस वहीं पे मिलेगा जहां पे आप अलाइंड है। अगर आप अपने आप को फालतू में पुश कर रहे हो तो आई थिंक मतलब आपको मिल सकता है, लेकिन मे बी नॉट। लेकिन आप वही है, 50-50 चांसेस दोनों का है, तो वाई टू टेक रिस्क लाइक दिस। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मुझे ध्यान में है आपकी इस डिस्कशन से। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने देखा है ओवर द इयर्स कि बच्चे ना कोई स्पेस, कोई गोद ढूंढते हैं अपना फेलियर का ठीकरा फोड़ने के लिए। कभी वो टीचर को बना देते हैं, वो कभी अपने पेरेंट्स को एक ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, तुम्हारी वजह से नहीं कर पाया, तुमने बोला था इसीलिए, सर आपने बोला था तभी नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ मतलब वो सराउंडिंग सिचुएशंस के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, है ना? खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, खुद डिसीजन नहीं ले पाते। तो जैसे आपने देख कहा कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आप एक डिसीजन मेकर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि बीइंग ए डिसीजन मेकर और बीइंग ए डिपेंडेंट पर्सन,
फॉर टेकिंग द डिसीजंस, ठीक है? क्या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है? लाइक जो बंदे दूसरों के कहे कि माँ बाप ने कहा चलो यूपीएससी कर ले, ठीक है अब मैं यूपीएससी कर लेता हूँ, फिर नहीं हुआ तो हाँ आपने बोला था करने के लिए, मैं तो कुछ और करना चाहता था। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे बीइंग ए डिसीजन मेकर टू बीइंग ए नॉन डिपेंडेंट पर्सन, कौन ज्यादा आगे लाइफ में बढ़ सकता है? और डिसीजन लेते समय कहना आसान है डिसीजन लेना, बट यार अंदर से ना, मैं अगेन वर्ड यूज नहीं करना चाहता वो, लेकिन डर बहुत लगता है कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, है ना? तो आपको कैसे ये हिम्मत मिली आगे खुद से डिसीजन लेने के, इतने बड़े बड़े डिसीजंस, क्या कहाँ से हिम्मत आई? सो आई थिंक ये चीज थोड़ा सा, एक तो वो थोड़ा सा वो अपब्रिंगिंग वाला भी होता है कि मतलब हम्म। आई वाज ऑलवेज अ रिबेलियस किड के अपने मन की हम्म। करनी है ये वो करके। तो इवन द केमिकल इंजीनियरिंग डिसीजन कि वाई टू टेक केमिकल इंजीनियरिंग जब सीएस मिल रहा है, आईटी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। तो आई हम्म। थिंक my journey basically of taking these heavy decisions started from there कि मेरे पेरेंट्स वर लाइक हम बाहर खड़े काउंसलिंग के, वो कह रहे सीएस ले लो, आईटी ले लो बेटा, सब यहाँ पे कोई केमिकल इंजीनियर नहीं ले रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग में आके क्या ले रहे हो, ये क्या प्लांट में काम कराएंगे, कुछ बाहर भेज देंगे, कुछ तो कराएंगे, ये अच्छी बात नहीं है, लड़कियां नहीं करती हैं सब। तो आई वाज लाइक नो, मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है। तो ये चीज आपको करना। अब क्या है, वहां पे मेरा एस्केलेटेड कमिटमेंट हो गया कि ये चीज मैंने अपने उससे लिए, तो अब मैंने मेरे को अपने रिजल्ट दिखाने हैं। तो बिल्कुल। मेरे को वो चीज इवेंचुअली करती रहनी पड़ी। इट्स नॉट लाइक, और मेरे को एक चीज ये भी लगती है कि जो आप अभी बोल रहे थे एक्सक्यूजेस का, तो दे कैन बी 100 ऑफ एक्सक्यूजेस व्हाई यू बिल्कुल। फेल, बट दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी आउट। तो बिल्कुल। आपको बस वो एक मोटिवेशन और एक अपने अंदर देखना है, बाकी सब चीज एक्सटर्नल है। आज आपको भले ही वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, आपने आपको बोल दिया, आपको ब्लेम कर दिया, बट इट्स नॉट हेल्पिंग देम एनीवेज। तो व्हाई टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन समथिंग व्हिच इज नॉट हेल्पिंग यू इवेंचुअली। मैं ब्लेम चाहे से 50 लोगों को कर लू, लेकिन उससे मेरे को क्या बेनिफिट है? अल्टीमेटली कुछ नहीं है। मतलब जो मेरा पहले स्टेटस था, अगर मैं फेल हूं तो मैं यहाँ पे भी फेल हूं ना। 50 लोगों को बेनिफिट करके मैंने अपने आप को खुद को नेगेटिव और कर लिया, rather than staying a positive person looking at the learnings basically। तो लाइफ में आई थिंक लर्निंग्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इवन योर फेलियर्स टीच यू समथिंग कि अच्छा ये नहीं करना है, ये करना है, तो ये लर्निंग थी। तो एटलीस्ट अब मुझे इतना तो पता है कि ये तो नहीं करना है, बाकी नई तरीके की मिस्टेक्स होगी, दैट आई कैन हैंडल। और दूसरी चीज आई थिंक कि आपको ना वही अलाइनमेंट देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अलाइन कर रहे हो। तो आप डिसीजन, एक स्टैंड आपको हमेशा से लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मतलब आई नो कि देयर आर सम पीपल इन माय ग्रुप्स आल्सो जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा ओवरशैडो करते थे कि नहीं बेटा यही करना है, यही अच्छा है। तो लेकिन देयर इज ऑलवेज अ 50-50% चांस। और अगर आप वहां पे सक्सेसफुल हो भी गए तो भी मैंने वो लोगों को देखा कि दे आर नॉट हैप्पी वर्किंग व्हाट दे डू। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं खुश हूँ कि मेरे को पता था कि मुझे यही करना है। अगर नहीं करना तो आई वांट टू चेंज माय सिचुएशन। और सिचुएशन में मैं फिर अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी कि अब मैं इनसे जाके पूछूं कि मैं जॉब छोड़ दूं या नहीं। ठीक है, तो मैं छोड़ दूंगी। तो वो इंडिपेंडेंसी आपको आज नहीं तो कल एक बिल्ड करनी है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स की भी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। दे बिल्कुल। ग्रो अप बिल्कुल। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, वी आर ग्रोइंग अप इन अ वेरी इवॉल्विंग वर्ल्ड नाउ। तो जहाँ बिल्कुल। पे कटिंग एज कंपटीशन है, आप अपने पेरेंट्स की नॉलेज पे नहीं रिलाय कर सकते। आपके पेरेंट्स के टाइम पे बहुत कम पैसे चाहिए थे सरवाइव करने को, लाइफ के इतने एम्बिशियस नहीं थे, लोग इतना खर्चा नहीं करते थे। आज के जमाने में लोग बिलीव करते हैं कि टू स्प्लर्ज, की छोटी छोटी बिल्कुल। खुशियों पे ज्यादा, रादर देन बिल्कुल। सेविंग इट फॉर द बिगर टाइम। कि जैसे आप अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब का बोले तो वो सैलरी छोटी छोटी मिलती है, लेकिन पेंशन अमाउंट बड़ा मिलेगा। लेकिन मेरे को ये है कि मैं तब तक जिंदा तो रहूं। सही आज की बात। जो चीजें, क्लाइमेट एनवायरमेंट देख के मैं शायद से इतने साल जिंदा भी नहीं रहूंगी पेंशन एंजॉय करने के लिए। तो मैं को आज ज्यादा सैलरी दे दो रादर देन गिविंग मी द पेंशन। तो ये सब चीजें जनरेशनल गैप है जो कि रहेगा रहेगा। अब ये आपको ऐसे नहीं बोलूंगी कि आज जाओ और घर पे बोल दो आपने जो बोला मैं वो कुछ नहीं कर रहा, सही नहीं। बात। सही एक बात। बार आप जाओ, थोड़ा थोड़ा उनको भी समझाओ, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अप विद यू, दे आर ऑल्सो अडेप्टिंग विद यू। तो जैसे मैं भी अपनी मम्मी को आज भी समझा, इवन मेरी मम्मी आज भी मुझसे पूछती क्या जॉब है, क्या काम है, ज्यादा तो नहीं है। तो उनको मेरे को समझाना पड़ता है कि अगर मुझे कोई कितना पैसे दे रहा है तो आई नीड टू जस्टिफाई दैट सही बात। इवेंचुअली। कि सही ऐसे बात। नहीं कि कोई भी आके मुझे इतना पैसे कुछ भी दे जाएगा। इवन इन गवर्नमेंट जॉब अगर वो उतना पैसा दे रहे तो यू हैव टू जस्टिफाई कि आप काम कर रहे हो थोड़ा बहुत भी। तो वो चीज रहेगी, योर पेरेंट्स विल लर्न विद यू। लेकिन आपको उनको समझाना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और वो जितना बेबी स्टेप्स ले लेके स्टार्ट करोगे, इट विल हेल्प यू ओनली। तो वो चीज मैं बोलूंगी कि मतलब आपके पेरेंट्स को भी वो थोड़ा मौका दो, थोड़े ऐसे मतलब आज अगर वो प्राइवेट जॉब से ओके नहीं है तो उनको दिखाओ कि दोनों का कंपैरिजन एक क्लियरली दिखाओ। ये चीजें, ये चीज है, मेरे को जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे ज्यादा ओवर पावर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस। उनको भी आराम से बैठ के समझाओ, क्योंकि वो भी नहीं जानती कुछ भी चीज, उनके लिए भी इज इक्वली न्यू, इवन और ज्यादा रिस्की और है।
ठीक है, बिल्कुल। they want you to be safe, they are thinking what is best for you, they are thinking in your best interest only. ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी गलत चाहते हैं हमारे पेरेंट्स, बट दे जस्ट वांट अस टू बी सेफ, कि हम सेफली रहे लाइफ में। मे बी बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, जो जैसा भी रहा हो उस टाइम पे था कि लोगों को ज्यादा सिक्योरिटी प्रेफर थी, बट आज के जमाने में लोगों को ज्यादा इमीडिएट सेटिस्फैक्शन प्रेफर है कि अगर मेरे को आज ज्यादा सैलरी मिल गया, आज मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, आज मैं बाली या फुकेट घूमने चले गया, तो which is I think somehow is not possible in some of the jobs or some of the careers option that we have. For example, जैसे आप IIT दिल्ली का देख लो, अब IIT दिल्ली में लोग PhD करने जाते हैं, वो आराम से बाहर रहते हैं। फॉर अ पर्सन टू थिंक कि मैं PhD करूं तो मैं 7 साल लग जाएंगे यूएस से करने में, और ऑन दी अदर हैंड एक मेंटालिटी है कि 7 साल में यूएस में रहूंगा, उसके बाद मेरे को यूएस में करियर मिलेगा, सही एंड आई विल बात है। गेट पेड इन डॉलर्स। तो सही बात यू है। सी, दोनों है, सेम ही चीजें बोल रहे हैं, लेकिन एक मेंटालिटी कि हाउ यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन। सही बात Basically, है। I have so many friends, so many seniors who moved to US after MTech, जो वहां से PhD करे, यूरोप से करे। There are some people, there is this one girl who joined IIM Jammu as a faculty this year. तो ये सब भी लोग करे, they are coming back to India, or they might not, it's their decision, but it's a good career option. It depends on what आपको क्या चाहिए eventually life में। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड योर पेरेंट्स तो मेरे ख्याल से विल कम अलोंग, बस आपको थोड़ा थोड़ा उनको बेबी स्टेप्स लेके उनके साथ मूव करना है लाइफ में। बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने मेरी लाइफ में ऐसा देखा है कहीं ना कहीं कि जो बंदे डिसीजन मेकर होते हैं और क्लियर होते हैं, तो लाइफ में वो अच्छा करते ही करते हैं, आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। मैंने भी जब अपने मास्टर्स में जब प्लेसमेंट सीजन था, तो मैंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। तो मैंने घर पे बात बताई कि मुझे प्लेसमेंट प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मैं नहीं बैठना चाहता। तो पेरेंट्स ने काफ़ी बोला कि यार आईटी दिल्ली में अच्छा प्लेसमेंट पैकेज लग जाएगा। मैंने बोला 9 to 5 जॉब ही नहीं करनी, मुझे कॉर्पोरेट में जाना ही नहीं है। एंड इवन आफ्टर जब मैंने टीचिंग करियर स्टार्ट किया, तो शुरू में उन्होंने काफ़ी बोला कि भर दे पीएससी का फॉर्म, तेरे को तो सब आता है, तो कर दे काम, चला जा चला जा। मैं कहा मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, आज मैं टीचिंग में हूँ, हजारों बच्चों को भेजूंगा, तो क्या बड़ी Exactly. चीज आप बताओ, है ना। तो अगेन पेरेंट्स का जनरेशनल गैप काफी रहता है, और काफी देर बाद जाके उन्हें समझ में आता है कि हाँ, जो चल रहा था वो क्यों चल रहा था और कैसे चल रहा था। एक लास्ट क्वेश्चन श्वेता मैं आपसे और पूछूंगा कि बीइंग ए गर्ल, है ना, ये जो जर्नी आपकी रही है, बहुत सारी लड़कियां भी आपको इस सेशन में देख रही होगी, है ना, जो कि शायद गेट की हाफ हार्टेडली प्रिपरेशन कर रही है कि ठीक है, पता नहीं है, होगा ठीक है, नहीं तो अगले साल देख लेंगे, कोई ऐसे वैसे कॉलेज से मास्टर्स कर लेंगे, फिर अपना शादी करके अपना सेटल हो जाएंगे। तो उनको क्या कहना चाहोगे कि लाइफ सिर्फ इतनी ही है, और अगर तैयारी कर भी रही है वो, तो कितना सीरियस होकर तैयारी करे, और लाइफ में वो कितना आगे जा सकती है ना। मतलब बीइंग ए गर्ल, एक गर्ल को क्या सोचना चाहिए अपने आप को, और कितना आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, तो एक बार उसके बारे में। So basically I think आज के जमाने में it's very very लाइक मैं ये important to क्वेश्चन be, इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो गेट की तैयारी जस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि चलो 1 साल डिले हो जाएगा मैरिज में, और 2 साल की मास्टर्स भी इसलिए करते हैं कि चलो 2 साल और डिले हो जाएगा। मतलब दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर करियर, दे आर थिंकिंग कि चल 1-2 साल और डिले हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। टू बी ऑनेस्ट मेरे भी वन ऑफ द वो फैक्टर था हाँ। जब मैं कर रही थी, तो हाँ। तो आई कैन रिलेट देयर। सो लेकिन बेसिकली ना, मतलब बट आई फेल्ट कि ठीक है, मेरे को उस टाइम पे डिले करना था, और आज की डेट में ये है कि आई कैन मतलब अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन टेक बिल्कुल। दोस फाइनेंशियल डिसीजंस जिनके लिए कल मेरे को शायद से किसी और का सपोर्ट चाहिए था या वेट करना था। आई कैन go out and buy a flat on my own, to be honest. Matlab I have enough of funding, enough of salary option that can eventually like single handedly fund my entire house loan or something. बहुत बड़ी बात। तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पेरेंट्स को एक जनरेशन भी अगर एक लाइबिलिटी की तरह देखता है, इट इज बिकॉज ऑफ सम रीजन जो पहले होता था, बट टाइम्स आर चेंजिंग, तो वी नीड टू चेंज विद टाइम्स। मेरी भी फैमिली में जैसे आप देखोगे कोई भी नहीं है इतना इंडिपेंडेंट, मेरी मम्मी बस मेरे को पुश किया, लेकिन उससे पहले आई हैड नो रोल मॉडल एज सच की लाइफ में कि कोई कर रहा हो, पीपल गॉट मैरिड, माय मॉम इवन हैड अ चाइल्ड मैरिज एंड ऑल। सो आई ग्रो अप इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये वाली चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू टेक माई डिसीजन ऑन माई ओन, to take a call when I want to get married or I don't want to get married. So that is entirely my call. I'm at 30 right now, and I'm really happy with all the
things that I've achieved in my life. So it happened because I went into IIT Delhi at first. Because वहां से मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो हम एक ऑरा में लड़कियों को देखते हैं, बिकॉज आई वॉज इन बनसली यूनिवर्सिटी, बनसली इज ऑल गर्ल्स कॉलेज, वो जिस ऑरा में आप लड़कियों को और सबको देखते हो, इट्स वेरी डिफरेंट देन what all these places, all these quote premier institutes teach you to, कि वो वहां पे ऐसा एसेट दिखते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, और वो और एनकरेज करते हो उस चीजों के लिए. तो यू सी के पहली बार एक लाइबिलिटी से हटके आप एक एसेट की तरह ट्रीट किए जा रहे हो यहाँ पे. बी इट कहीं भी कोई सा भी स्पेस हो कि आपको नॉर्मल एक स्पेस हो, यू विल बी वेलकम्ड, लोग तुम्हारे डिसीजंस लेंगे, लोग तुम्हें लीड करने को बोलेंगे. और जहां पे नहीं होता वहां पे कोई बात नहीं, यू विल प्रूव योरसेल्फ. तो द फाइटर एटीट्यूड यू नीड टू हैव इन योरसेल्फ कि एटलीस्ट मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊं, आई हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, पहली बात तो आई नो मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स थी जो चाहती थी गेट करना, लेकिन उन्होंने बनसले के बाद नहीं किया बिकॉज देयर पेरेंट्स वांटेड देम टू गेट मैरिड, कि जैसे कॉलेज हुआ, जॉब लगा तो लगा, नहीं लगा तो शादी कर लो. तो अगर आपको गेट का अपॉर्चुनिटी भी आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, इट्स अ वेरी big opportunity that they have given you. They've invested in you, they have given you ample amount support financially or emotionally. तो उस चीज का यूज करो, ना कि मिसयूज करो. तो गिव योर बेस्ट. अगर आपको गेट नहीं करना, आपको जो करना आप वो करो, ठीक है, लेकिन गिव योर बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड उनको शो करो, मतलब उनको भी नहीं तो एक सोसाइटी को शो करो कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन गर्ल्स. जो सोसाइटी एज अ लाइबिलिटी की तरह देखती है, सोसाइटी को भी पता चले कि लड़कियां पढ़ाने से लड़कियां आगे जाएंगी तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा. यू आर एक्चुअली एजुकेटिंग अ होल जनरेशन, यू आर एक्चुअली इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स अराउंड यू. आई रिमेम्बर ऑन द सेम लाइन, आई रिमेम्बर कि जैसे मैं आईआईटी दिल्ली गई थी, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बेसिकली परस्यू इंजीनियरिंग एंड देन गो इनटू आईआईटी दिल्ली. आज मेरी कजिन है जो कि बीटेक करी आईआईटी रुड़की से, शी गॉट इंस्पायर्ड एंड शी लास्ट ईयर शी जॉइंड आईआईटी रुड़की. सो दिस इज द इम्पैक्ट दैट आई हैव क्रिएटेड. सो वो आज भी मुझे कहती कि दीदी आप अगर नहीं होते तो शायद से मुझे आईआईटी के बारे में पता ही नहीं चलता, और मेरे पापा तो मेरे को पुश ही नहीं करते. तो उसके पापा ने पुश किया, हम सब लोगों ने पुश किया, तो शी इज इन रुड़की राइट नाउ. तो वो कोई भी हो सकता है, इट कुड बी अ यंगर सिबलिंग और इट कुड बी पीपल अराउंड यू जो तुमको देख के इंस्पायर हो. तो इफ यू हैव दैट कैपेसिटी, दैट केपेबिलिटी, देन प्लीज डू दैट, डू इंस्पायर पीपल. एंड इसके बाद चीजें इजी होती चली जाएंगी वंस यू हैव द राइट स्किल सेट एंड राइट नॉलेज. तो ऐसा नहीं है कि क्या शादी के बाद आप क्या करेंगे, आप बैठेंगे वो खाना वाना बनाएंगे, दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल. यू आर हेयर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, सॉल्व some bigger problems, some society issue, to make an identity of your own. Your husband's identity, your father's identity is not your own identity. तो वो चीज पे आप एक बिगर गोल की तरह करो. एंड ऐसा मतलब ये चीज मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि अगर आपको इतना फ्रीडम मिल रहा है तो डोंट मिसयूज इट इन अ वे कि लोग उसको एज अ इनहिबिटिंग फैक्टर देखने लगे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो हमेशा ऐसा कुछ करो लाइफ में कि लोग एग्जाम्पल दे कि अगर लड़कियों को पढ़ाओगे तो ऐसा ऐसा कुछ करके दिखाएंगी. तो बी दैट एग्जाम्पल इन योर सोसाइटी, इन योर कम्युनिटी. बेसिकली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो ऑल द गर्ल्स, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मेक द मोस्ट ऑफ इट. बिकॉज आज अगर इसका बेस्ट यूज आप करोगे तो यू डोंट नो कि कल को शायद आपको देश चलाने का मौका मिले. यू नेवर नो. तो आगे बढ़ते रहो, है ना. और लाइफ में अगेन प्लानिंग करना जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि प्रेजेंट ही भूल जाओ. प्रेजेंट में सक्सेस करना ज्यादा जरूरी है. तो आज अगर हार्डवर्क करोगे उसके फल भी आपको आज मिलेगा डेफिनेटली. और इकोनॉमिक्स भी यही बोलती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, कि आज से 10 साल बाद जो कमाओगे उसकी वैल्यू तो वैसे ही कम हो जानी है. तो आज ही अपना बेस्ट दो, आज ही अपना बेस्ट एफर्ट करो, बेस्ट लाइफ जियो, बेस्ट अर्निंग करो, बेस्ट स्पेंडिंग करो, बिकॉज प्रेजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू श्वेता, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन. और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिली होगी इस सेशन से, आई एम श्योर, वेरी श्योर. और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज बच्चों के लिए सॉर्ट हुई होगी. और हमने वेरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, तो अलग अलग लाइन की नॉलेज जो बच्चों को आज मिली है. एंड डेफिनेटली उसके लिए thank you from all the students, and thank you from my side also for giving your time and giving your valuable experience and sharing your experience to all the students. Thank you so much, sir. आपके शायद से मतलब I just hope कि I am able to inspire and maybe motivate some of the kids around, through you basically.
So I just hope कि I had the kind of sessions that you are holding right now. अगर मेरे टाइम पे होता तो शायद से मुझे इतने सारे लोगों के पास जाके इतने सारे लोगों को परेशान करने की जरूरत ना पड़ती. But I'm really happy that you are doing that. It's really incredible कि आप मतलब गेट कोचिंग करने के बाद भी आप बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में भी लोगों को अवेयर कर रहे हो, so that people do not restrict themselves in one direction. That's really incredible. Thank you so much. थैंक यू श्वेता, एंड आगे भी फ्यूचर में